بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملتان میں کشیدگی، پی ڈی ایم نے قانون کی دھجیاں اڑا دی، جیالے اور متوالے آپے سے باہر، پولیس پر پتھراؤ، بپھرے کارکن رکاوٹیں توڑ کر اسٹیڈیم میں داخل، کنٹرول سنبھال لیا۔ پی پی کے ساتھ جے یو آئی اور نون لیگ کے کارکن بھی موجود، کارکن سب بھول گئے، کورونا ایس او پیز کا بھی کوئی خیال نہ رہا۔ پی ڈی ایم ملک دشمنی پر اتر آئی ہے، غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں غیر ذمہ دارانہ رویہ کا نقصان اپوزیشن خود اٹھائے گی۔ فردوس ہاشمی گوان کہتی ہیں پی ڈی ایم کا ٹولہ کورونا پھیلاؤ کا ذمہ دار ہے، خدارا عوام اور ملک پر رحم کریں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کورونا کی شدت کے باعث جلسوں پر پابندی لگائی۔ نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ شریف میڈیکل سٹی میں ادا، مرحومہ کو جاتی عمرہ میں میاں شریف کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ نماز جنازہ میں لیگی قیادت، اپوزیشن رہنما اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود۔ لندن سے لاہور پہنچنے پر شہباز شریف نے والدہ کا جست خاکی وصول کیا۔ نواز شریف والدہ کو دفنانے نہیں آئے تو ہمارے کہنے پر کیسے آئیں گے؟ حکومت کی کوشش ہے نواز شریف کو واپس بلا کر سزا پوری کرائے۔ اعجاز شاہ کہتے ہیں کورونا کی صورتحال دیکھ کر وزیراعظم نے تمام جلسے منسوخ کیے۔ پی ڈی ایم اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلے۔ پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد پشاور میں کورونا کا پھیلاؤ انتہائی تیز، پشاور میں مثبت کیسز کی شرح 19% تک جا پہنچی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ذمہ دار اپوزیشن اتحاد کو قرار دے دیا۔ کامران منگش کہتے ہیں صرف شہریوں کو ہی نہیں، جلسہ منتظمین کو بھی کورونا ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو کے بعد اے این پی رہنما سبن بلور بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کورونا کے باعث ایک روز میں مزید 45 مریض جاں بحق، 24 گھنٹے میں 3045 نئے کیسز رپورٹ۔ سندھ میں 12 اموات اور 1423 کیسز آئے۔ پنجاب میں ایک روز میں 15 اموات اور 738 کیسز رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں 9 اموات اور 232 نئے کیسز سامنے آئے۔ اسلام آباد میں کورونا سے 2 اموات اور 447 کیسز کی تصدیق۔ نیوزی لینڈ میں موجود پاکستان کرکٹ ٹیم کی مشکلات میں اضافہ، ایک اور رکن کو کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، متاثرہ ارکان 7 ہو گئے۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے والے ارکان کو چہل قدمی کی اجازت، اسکواڈ ممبرز صرف بالکونی سے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ پاکستانی اسکواڈ کا تیسرا کورونا ٹیسٹ 30 نومبر کو ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نائجر میں موجود عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ یو اے ای کی وزیر مملکت بین الاقوامی تعاون رحیم الہاشمی کے ساتھ بیٹھک۔ پاکستانی شہریوں کو اماراتی ویزے کے حصول میں درپیش مشکلات زیر غور۔ مرغزار چڑیا گھر کے ہاتھی کاون کو کمبوڈیا بھیجنے کی تیاریاں مکمل، خصوصی کارگو طیارے کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت۔ بانو قدسیہ ایک عہد ساز شخصیت، راجہ گدھ، امر بیل، بازگشت، آدھی بات، دوسرا دروازہ، تمثیل، مشہور تصانیف۔ ادب کے میدان میں گراں قدر خدمات پر ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ گوگل کا بھی بانو قدسیہ مرحومہ کو زبردست خراج عقیدت۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ 30 نومبر پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر لیڈیز ونگ ضلع گھوٹکی کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ 30 نومبر یوم تاسیس پی ڈی ایم کے ملتان میں ہونے والے جلسے کے سلسلے میں پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ ضلع گھوٹکی کا ایک اجلاس پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نادر علی شاہ جیلانی کی رہائش گاہ پر منعقد کیا گیا، جس کی صدارت لیڈیز ونگ ضلع گھوٹکی شبنم بھٹو نے کی، جس میں سکھر لیڈیز ونگ ڈویژنل صدر ایم پی اے غزالہ سیال، جنرل سیکریٹری ایم این اے شازیہ اسلم سمرو، پی پی ضلعی جنرل سیکریٹری سکندر علی لاکھو، تعلقہ صدر میر حمزہ
हमजा खान सुंदरानी, जिले डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखो, पीपी सिटी सदर सैयद रिजवान अली शाह जिलानी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हसन चाचड़ व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्तान में होने वाले जलसे में पीपल्स पार्टी लेडीज विंग जिला घोटकी की जानिब से भरपूर शिरकत करने का ऐलान किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सखर लेडीज विंग डिविजनल सदर MPA गजाला सयाल, जनरल सेक्रेटरी MNA शाजिया असलम सुमरो ने कहा कि 30 नवंबर पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मुल्तान में होने वाले जलसे में जिला घोटकी समेत सिंध भर से खवातीन बड़ी तादाद में शिरकत करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर होने वाले मुल्तान जलसे में लेडीज विंग के ओहदेदारान व कारकुनान भरपूर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि लेडीज विंग की कारकुनान मौजूदा गरीब दुश्मन हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के शाना बशाना है। लेडीज विंग की खवातीन मुल्तान के जलसे में भरपूर शिरकत करके तस्दीदे एहदे वफा करेंगी। 30 नवंबर को मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज घोटकी। मेहड़ में नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे पुलिस के क़याम अमल में सालगिरह मनाई गई। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेहड़ में नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस बीट 5 की जानिब से मोटरवे पुलिस के क़याम अमल की सालगिरह मनाई गई। इस सिलसिले में बीट 5 मेहड़ में सादा पुरवकार तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें DSP कमर जमान खोसो, इंस्पेक्टर एडमिन अफसर अब्दुल समद अबड़ो, इंस्पेक्टर ऑपरेशन सईदुल्लाह मक्सी और स्टाफ ने मेहड़ टूल प्लाजा पर रोड इस्तेमाल करने वालों को फूलों के ताइफ और नेक ख्वाहिशात के कार्ड दिए, फ्लैग मार्च किया और केक काटा। इस मौके पर नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस मेहड़ के DSP ने मीडिया को बताया कि 26 नवंबर 1997 में नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस का क़याम अमल में आया था और उसी दिन के हवाले से ये तकरीब मुनक़द की गई है और महकमा नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए गए। गुलाम हुसैन पवर, हक न्यूज, मेहड़। मेहड़ के 3 मकतूलीन कत्ल केस में नामजद, मुलजम जुल्फ़िकार चांडियो गिरफ्तार। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। उमेरबाब चांडियो के दादा UC चेयरमैन करमुल्लाह चांडियो, वालिद तमन्नादार मुख्तियार चांडियो और चचा जिले कौंसल मेंबर काबिल चांडियो के कत्ल केस में नामजद मुलजम जुल्फ़िकार चांडियो गिरफ्तार हो गया। इस मुतल्लिक मिले इतला के मुताबिक उमेरबाब चांडियो के खानदान के 3 अफराद के कत्ल केस में मतलूब मुलजमान मुर्तज़ा चांडियो और जुल्फ़िकार चांडियो की गिरफ्तारी के लिए मेहड़, बारा, कंबर जिले की पहाड़ी पट्टी में चलने वाले ऑपरेशन के बाद उमेरबाब चांडियो के खानदान के कत्ल केस में मतलूब मुलजमान में से एक मुलजम जुल्फ़िकार चांडियो बलूचिस्तान से कश्मीर मुंतकिल होते गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी की तस्दीक मकतूल के खानदान ने की है। इस बारे में राब्ता पर उमेरबाब चांडियो ने कहा कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर डील के तहत एक मुलजम को पेश कराया है, जबकि कत्ल केस में मतलूब मरकजी मुलजम मुर्तज़ा चांडियो को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि एक मुलजम गिरफ्तार हुआ है। हम चाहते हैं कत्ल केस में मतलूब मरकजी मुलजम मुर्तज़ा चांडियो को गिरफ्तार किया जाए, जबकि गिरफ्तार मुलजम जुल्फ़िकार चांडियो पर 10 लाख रुपए इनाम भी रखा गया था। गुलाम हुसैन पवर, हक न्यूज, मेहड़। नेशनल बिजनेस ग्रुप और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के ओहदेदारों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं से मुलाकात की। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। नेशनल बिजनेस ग्रुप और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के ओहदेदारान मियाँ जायद हुसैन, खालिद तवाब, अदील हाशमी, जायद मुख्तियार और दीगर ने मेहड़ पहुंचकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा मियाँ अब्दुल हक चतोई, जुबैर अहमद भुट्ट, अब्दुल खालिक शेख और दीगर से मुलाकात की और व्यापारियों से उनके मसाइल पर बातचीत की। इस मौके पर नेशनल बिजनेस ग्रुप और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियाँ जायद हुसैन ने नेशनल प्रेस क्लब मेहड़ के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की जानिब से होने वाले इलेक्शन के सिलसिले में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं। व्यापारियों के मसाइल से वाकिफ हैं। टैक्स, बदअमनी और दीगर मसाइल के हल के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर हुकूमत से बातें करके मसाइल हल कराएंगे। उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत छोटे व्यापारियों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही, जिसके बायस व्यापारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। टैक्स के दबाव के बायस व्यापारी और आम आदमी परेशान है। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों के मसाइल को अवलीन तरजीह देंगे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल वहाब जतोई, मंसूर शेख, जावेद आगरो और दीगर भी मौजूद थे। गुलाम हुसैन पवर, हक न्यूज, मेहड़। साहिवाल में DSP ट्रैफिक डॉक्टर आसिफ कमाल का ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए अंदरून शहर मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में।
साहिबा DSP ट्रैफिक डॉक्टर आसिफ कमाल ने अंजुमन ताजरों के नुमाइंदों के हमरा अंदरून शहर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मसाइल हल के सिलसिले में दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंदरून शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से सर अंजाम दें। इस मौके पर उन्होंने शहरियों और अंजुमन ताजरों के नुमाइंदों से भी अपील करते हुए कहा कि इस सिलसिले में वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल तामन करें। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, हक न्यूज़, साहिबा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर निजी दौरे पर साहिवाल पहुंचे और हड़प्पा कमेर के हाई स्कूलों का दौरा किया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर निजी दौरे पर साहिवाल पहुंचे और उन्होंने चीचा, बतनी, हड़प्पा और कमीर के हाई स्कूलों का दौरा किया और तुलबात में जर्सियां, स्वेटर, जैकेट्स वगैरह तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तारीख मालात में रहने वालों को याद नहीं करती, तारीख इंसानियत की खिदमत करने वालों को याद रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि सरवर फाउंडेशन पाकिस्तान सूबा भर में 50,000 तुलबात को सर्दी के बचाव के लिए जैकेट, जर्सियां और स्वेटर तकसीम कर रही है, जिसमें 4,000 जिला साहिवाल में तकसीम की जा रही है। पूरी दुनिया जो है कॉटन की शील्ड जो है वो 2,000 किलोग्राम ले रही है, हम 500 किलोग्राम ले रहे हैं। पूरी दुनिया 70 मन रंगदम का ले रही है, हम 30 मन ले रहे हैं। तो इन चीज़ों पे इंशाल्लाह अब हम तवज्जो देंगे। एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बना दिया है जिसको मैं और चीफ मिनिस्टर साहब लीड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो कमेटी जो है जो किसानों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी भरपूर जो है तवज्जो देगी। इस मौके पर मजीद उन्होंने कहा कि कोरोना के पहले फेज के दौरान सरवर फाउंडेशन ने पूरे सूबे में 10 अरब रुपए के राशन तकसीम किया। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, हक न्यूज़, साहिबा। मटियारी ओडेरो स्टेशन पर प्रेमी जोड़े ने मटियारी की अदालत में मोहब्बत की शादी कर ली। तफसीलात जानते हैं शाहिद खासखेली की इस रिपोर्ट में। उडेरोलाल स्टेशन के रहवासी प्रेमी जोड़ा आजरा कुंबर ने मटियारी की अदालत में गमशाद चना से मोहब्बत की शादी कर ली। प्रेमी जोड़े ने मटियारी मीडिया हाउस पहुंचकर सहाफियों से बातचीत करते हुए आजरा वलद राशिद कुंबर ने कहा कि मेरी पहली शादी मेरे चचाजाद भाई से हुई थी, जिससे साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था, जिससे कुछ दिन कबल मैंने तलाक ले लिया। अब मैंने अपनी खुशी से मटियारी की अदालत में गमशाद चना से मोहब्बत की शादी कर ली है, जिसके बाद मेरे रिश्तेदार भाई राशिद कुंबर हमारे जान के दुश्मन बन गए हैं, जो मुझे और मेरे शोहर को मारने की साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से निकाह किया है। मैंने अपनी मर्जी से अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आईजी सिंध, DIG हैदराबाद, SSP मटियारी से मुतालबा करते हुए कहा कि मुझे और मेरे शोहर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरे इस बयान को रिकॉर्ड पर रखा जाए कि जब मुझे मेरे शोहर को किसी किस्म का जानी या माली नुकसान हो तो उसका जिम्मेवार मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई और मेरे वालिद को समझा जाए। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज़, मटियारी। मिसिंग पर्सन की आज़ादी के लिए पैदल मार्च कराची से मटियारी पहुंच गया। मटियारी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तफसीलात जानते हैं शाहिद खासखेली की इस रिपोर्ट में। मिसिंग पर्सन्स की आज़ादी के लिए कराची से सिंध सभा रहनुमा इनाम सिंधी, सूर्या सिंधी और मिसिंग पर्सन आकिब चांदियो की वालदा मुख्तियार बेगम और बहन साजिया चांडियो, इंसाफ दायो बहन अक्सा दायो, फैसल आराइन के वालदा बशीर आराइन, डॉक्टर फतेह मोहम्मद खोसो बेटे नसीबुल्ला खोसो, नसीम बलोच के मंगेतर हानी बलोच, शिराज बलोच और फराज सुमरो के वालिद की सरबराही में GHQ रावलपिंडी की तरफ पैदल मार्च करने वाला काफिला मटियारी पहुँच गया। मटियारी प्रेस क्लब के सामने मकामी रहनुमा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने मार्च का शानदार इस्तकबाल का फूल निछावर किया और अजरक के तोहफे पेश किए। उस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए इनाम राशिदी और साजिया चांडियो का कहना था कि जबरदस्ती उठाकर गुम करना गैर कानूनी अमल है, मगर अफसोस है कि पिछले 15 सालों से सिंधी नौजवानों को उठाकर गुम किया जा रहा है, जो हम सिंधियों के साथ नाइंसाफी है। हम सिर्फ एक मकसद और एक मुतालबा लेकर रावलपिंडी जा रहे हैं कि हमारे नौजवानों को जबरदस्ती गुमशुदगी का गैर कानूनी अमल बंद किया जाए और भी सिंधी नौजवान मिसिंग पर्सन है उन्हें फौरी रिहा किया जाए। हम सिर्फ एक ही मुतालबा लेकर रावलपिंडी जा रहे हैं और तब तक हम GHQ के सामने धरना देंगे जब तक हमारे नौजवानों को रिहा नहीं किया जाता। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज़, मटियारी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।